Good morning, children. This video for class 8 English 1 lesson number 4, the Walls Address. In this video I will introduce this chapter as well as will start the first section of this lesson. Okay, so open your raindrop books, page number 43. Okay, see children, on page number 43, let us read out this lesson as well as I'll explain also. Sir Donald Bradman, an Australian cricketer, is acknowledged as the greatest batsman of all time. The Bradman Oration, established in the year 2000, is an annual event honoring his memory. Every year, a prominent sportsperson is invited to speak about Sir Bradman's cricketing spirit and on the influence of the game in their life. Here is an excerpt from the 2011 speech delivered by the speaker chosen that year, and he was Rahul Dravid. Okay, see that here. What is written here? That the Bradman Oration, Sir Donald Bradman. It is he's an Australian cricketer. Okay, so here the Bradman Oration. What is the Bradman Oration? So it is the Sir Donald Bradman Oration. Is an Australian cricketer, and it is an Australian cricket calendar event which honored the career, contribution, and memory of one of the greatest ever cricketers, Sir Don Bradman. Okay, and the function provide a platform for prominent national or international figure to reflect on Sir Donald's career and on cricket's place in their own lives and the life of the nation. Okay, the Honorable John Howard delivered the inaugural oration in August 2000, and then continue. They are arranging this the Bradman Oration. ओके सो यहाँ पे एक जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, उसने जो अपनी कंट्री के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो क्रिकेट जो डिग्निटी से, जो करेज से, जो स्पिरिट से खेला है, सो उसके ऑनर में यहाँ पे एक ब्रैडमैन ओरेशन, एक ऑस्ट्रेलियन कैलेंडर जो है वो बनाया जाता है. वहाँ पे देश विदेश से कोई ना कोई क्रिकेटर को बुलाया जाता है और उसको ब्रैडमैन और क्रिकेट के बारे में, ब्रैडमैन ने किस तरह से क्रिकेट खेला था, हाउ द ब्रैडमैन played cricket, okay, as an Australian. In 2011, this chance was given to Rahul Dravid, and Rahul Dravid spoke about सर डोनाल्ड ब्रैडमैन. उन्होंने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन किस तरह से क्रिकेट खेलते थे और किस तरह से उसका इम्पैक्ट जो है वो क्रिकेट ऑल द क्रिकेटर्स के ऊपर है. एज यू नो डैट सचिन तेंदुलकर का जो इम्पैक्ट हम लोगों पे जो है, सो लाइक दैट ऑल्सो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन हैज ऑल्सो पुट a very interesting impact on the Australian as well as an Indian and all over the world. Okay, so he was a great person, and उसके बारे में यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने कुछ बताया है, as well as he has explained what is an Australian cricket, what is an Indian cricketers, वो क्या सोचते हैं. So all these things are given in this lesson. So let us start our lesson number 4, the Walls Address. Okay, so open your page number 44. Okay, children, see here on page number 44, the Rahul Dravid. Okay, the great cricketer Rahul Dravid ने जो स्पीच दिया था during this Bradman Oration at the National War Memorial in Australia. So how he has started, let us see that. Thank you for inviting me to deliver the Bradman Oration. The respect and the regard that came with the invitation to speak tonight is deeply appreciated. So here Rahul Dravid want to say that he is very happy, okay, for the invitation given by the Australia to speak about Sir Donald Bradman.
and he is appreciating, okay, the invitation given by the Australian. I must say that I find myself humbled by venue. Venue means the location where he is there. We find ourselves in, even though there is neither a pitch inside nor stump or bat and balls. As a cricketer, I feel I stand on very sacred ground tonight. Okay, see that here he is not playing against Australia, but he was invited for the oration and he is speaking about. But he feel that कि यहाँ पे ना तो pitch है, ना तो stump है, ना bat है, ना ball है, but he is feeling that this is the sacred ground where he is standing. ओके जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ पे उसको फील कर रहा है कि ही इज स्टैंडिंग on a sacred ground. Sacred means very very pure ground. Okay, so cricketers are praying the ground जहाँ पे वो खेलते हैं उसको बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, उस पर्टिकुलर ग्राउंड को भी देते हैं, बैट बॉल उनके सारे जो इक्विपमेंट जो होते हैं उन सब का वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. When I was told that I would be speaking at the National War Memorial, ये प्लेस है नेशनल वॉर मेमोरियल एक ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे ये इवेंट रखा जाता है. I thought of how often and how meaninglessly the words war, battle and fight are used to describe cricket matches. तो यहाँ पे जब भी मैच होता है ना तो हम बोलते हैं कि there is a war between Australia and India and other countries. Okay, so many people have joined this match. It is a match, okay, it is a competition, but many people have given the name. It is a war, it is a battle, it is a fight. जैसे fight कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, but it's just on cricket. Okay, it is a match for the country. Yes, we cricketers devote the better part of our adult lives to being prepared to perform for our कंट्रीज. यहाँ पे क्रिकेटर जो है अपनी जो एडल्ट लाइफ जो होती है, अपनी जो यंग एज होती है वो कम्प्लीटली अपने देश के नाम कर देते हैं लाइक अ सोल्जर. सो दे आर कंपेयरिंग देयर सेल्फ एज अ सोल्जर. टू persist means to continue. What is the meaning of persist? Persist means continue and compete as intensely. Intensely means devoutly. Okay, as we can and more. एज वी कैन एंड मोर. ओके, सो पूरी मतलब कंटिन्यूसली पूरी अपनी जो यंग एज है वो क्रिकेट खेलने में लगा देते हैं विद अ कंप्लीट डिवोशन. ओके, इंटेंसली देयर. So this building, however, recognized the men and women who lived out the words war, battle, fight for real and then gave it all up for their country. Their lives left incomplete, future extinguished. यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है जिसका नाम है नेशनल वॉर मेमोरियल, वहाँ पे जो है वो देश के सारे जो भी फाइटर्स होते हैं जिसमें वॉर में बैटल में फाइट में जो भी अपना जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, इट ऑल अप फॉर देयर कंट्री, जो अपनी कंट्री के लिए जो करते हैं. देयर लाइव्स लिव इनकम्प्लीट, फ्यूचर एक्सटिंग्विश्ड. तो ये यहाँ पे सब कुछ अपना कंट्री के नाम कर देते हैं. The people of both our countries are often told that cricket is the one thing that brings Indians and Australians together. That cricket is our single common denominator. Denominator means divisor. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट से क्या होना चाहिए कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के नजदीक आए, जो क्रिकेटर है एक दूसरे को समझे, ठीक है, एक दूसरे के नजदीक आए. they develop the relation very nicely. तो इसलिए ये क्रिकेट वगैरह सब रखा जाता है. तो गेम स्पिरिट जो होता है टू बिल्ड अप द ग्रेट रिलेशन विद ईच अदर. ओके, डेफिनेटली उसमें हार जीत होता है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है. सो ये ऑलरेडी वांट टू से कि क्रिकेट जो है वो क्रिकेट में ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ दोनों के बीच में हार जीत का ही रिलेशन रहता है, वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं. दे कम टू नो ईच अदर. India's first Test series as a free country
was played against Australia in November 1947, 3 months after our independence. We got independence in 1947 in the August, और अगस्त के 3 महीने के बाद एक फ्री कंट्री जैसे कि आज़ाद होने के बाद इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद एक ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुआ था. Yet the histories of our countries are linked together far more deeply than we think and further back in time than 1947. Okay, so 1947 में एक और चीज भी हो रही थी और उसके बाद हम लोगों को आज़ादी मिली. That was the World War II. तो World War II एक तरफ चल रहा था, उस चलने के बाद मतलब हमें आज़ादी मिली उसके बाद, और उसकी इम्पैक्ट जो था वर्ल्ड वॉर टू का और अभी ताज़ा ताज़ा ही था. उस दौरान ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट का एक मैच भी रखा. सो वी शेयर समथिंग एल्स अदर देन क्रिकेट. तो यहाँ पे राहुल द्रविड़ कहना चाहते कि वो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, कोई और भी चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं. बिफोर दे प्लेड द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट each other, Indians and Australian fought wars together on the same side. Okay, जहाँ पे वो क्रिकेट खेले इंडिया आज़ाद होने के बाद. उससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वॉर हुआ था, लड़ाई हुई थी. तो सोचिए कि क्रिकेट जो है, जिस क्रिकेट की वजह से वो एक दूसरे के नज़दीक आए, ऐसा हम समझ सकते हैं. लेकिन वहाँ पे बॉर्डर पे सोल्जर लड़ते हैं, ठीक है, अपने देश के लिए. यहाँ पे जो क्रिकेटर्स है वो भी अपने आप को एक फाइटर ही समझते हैं, जो अपने आप को अपने देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कंट्री का नाम आगे बढ़ाने के लिए वो ग्राउंड के ऊपर, हालांकि वो बंदूक गोलीबारी ऐसे इन सब चीज़ों से नहीं लड़ते हैं, लेकिन दे वांट टू गिव अ प्राइड टू देयर कंट्री, और उसके लिए वो अपना पूरा एफर्ट्स लगा देते हैं. सो दे कंपेयर देयर ओन सेल्फ. ओके, हियर सी दैट वी कैन सी दैट ऑस्ट्रेलियन इंडियंस एंड ऑस्ट्रेलियंस fought wars together on the same side in Gallipoli, where along with the thousands of Australians, over 1300 इंडियंस ऑल्सो लॉस्ट देयर लाइव्स. वॉर होती है उसमें बहुत सारे लोगों की लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन एक क्रिकेट जो होता है जिसमें एक हार जाए तो भी किसी की लाइफ को नुकसान नहीं होता. लेकिन अगर बैटल फील्ड हो, लड़ाई का मैदान हो, ठीक है, तो वहां पे एक दूसरे की जाने जा सकती है. इन वर्ल्ड वॉर टू there were Indian and Australian soldiers in Alamein, okay, North Africa, in the Syria, Lebanon campaign, in Burma, in the Battle of सिंगापुर. ओके, सो बहुत सारी कंट्रियों के बीच में वर्ल्ड वॉर था, तो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में इन्वॉल्व थी और एक दूसरे के साथ वो लड़ रही थी. उस दौरान 1947 में मतलब उसके बाद जैसे ही वर्ल्ड वॉर का खत्म हुआ, उसका थोड़ा इम्पैक्ट अभी थोड़ा रहा था, लेकिन दुनिया में लोगों ने अभी इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए सोच लिया था. सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारा वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ है. दैट इज गुड कि हम लोगों ने अभी समझ लिया कि लड़ाइयों से सिर्फ नुकसान होता है. तो इससे बेटर कि लड़ाई करें, इससे बेटर हम एक क्रिकेट मैच रख ले या ऐसा कुछ रख ले, तो इसमें हार जीत हो जाती है, लेकिन किसी की लाइफ या ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है. Okay, so here Rahul Dravid has introduced himself, और उसकी जो फीलिंग है यहाँ पे आकर how he is feeling, किस तरह से वो फील कर रहे हैं, किस तरह से क्रिकेट का शुरुआत हुआ था इंडिया से अदर कंट्री के लिए, अदर कंट्री के साथ. ओके, सो हियर एंड व्हाट इज द रिलेशन, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ किस तरह का रिलेशन था उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 45, जहाँ पे राहुल द्रविड़ हैज गिवन द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन. सर डॉन ब्रैडमैन जिसको बोला जाता है, उसने किस तरह से अपनी कंट्री के लिए फाइट की थी, किस तरह से वो क्रिकेट खेलते थे, उनकी क्या इम्पैक्ट थी अदर क्रिकेटर के ऊपर. दिस ऑल थिंग्स विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 45 इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट,
You take care, stay home, stay safe.